کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، شام سے شروع ہونے والا بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری، ہر طرف پانی ہی پانی، کورنگی کاز وے زیر آب، سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، کھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے قریبی علاقے ڈوب گئے، کے الیکٹرک کی روایتی بے حسی، متعدد علاقوں میں صبح سے بجلی غائب۔ کراچی میں صفائی کے ناقص انتظامات، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، گٹر ابلنے سے گلیوں میں پانی جمع، وبائی امراض پھیلنے لگے، مساجد کے اطراف بھی گٹر کا پانی جمع، کہاں جائیں کس سے کریں فریاد، شہری پھٹ پڑے۔ کیچڑ ہی کیچڑ ہے، چاروں طرف کیچڑ ہے، ایف سی ایریا میں ساری کیچڑ ہے، گندگی اتنی ہو رہی ہے، آج آنے آنے کو راستہ دیکھو ملتا نہیں، کیچڑ ہی کیچڑ ہے، سارا پانی ہے، سارا گندا علاقہ بنا ہوا ہے۔ یہ سب لاپرواہ لوگ ہیں، کراچی کا بہت برا حال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس صبح ہوگا، 8 نکاتی ایجنڈا جاری، مقبوضہ کشمیر اور ملکی سیاسی صورتحال پر غور ہوگا، وزیر اعظم مقبوضہ کشمیر سے متعلق اقدامات سے کابینہ کو اعتماد ملیں گے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی یورپی پارلیمنٹ میں بھی گونج، مقبوضہ آبادی جیل بن چکی، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے خارجہ کمیٹی کو مقبوضہ کشمیر پر بھارتی مظالم سے آگاہ کر دیا، ارکان نے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی حامی بھر لی۔ جس طرف یہ RSS ہندوستان کو لے کے جا رہی ہے، اس کے اندر کسی کی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں کہ ملک کے خلاف ہے، یہ ہندوستان کو اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ مودی نسل پرستی کے نظریے پر چل رہا ہے، اس نظریے سے سب سے زیادہ خطرہ خود بھارت کو ہے، ایٹمی ممالک کی ٹینشن بڑھی تو دنیا کو خطرہ ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کا انتباہ، سکھ کنونشن سے خطاب میں کہا مودی جو کشمیر میں کر رہا ہے، کوئی بھی مذہب انسانوں پر ایسے ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا، لاک ڈاؤن 29ویں روز میں داخل، چپے چپے پر فوج تعینات، وادی میں انسانی المیہ جنم لینے لگا، بزدل فوج نے ڈرون کیمروں سے جاسوسی شروع کر دی، قابض فوج بچوں کو غلام۔ بھارتی وزیر اعظم 21ویں صدی کا ہٹلر ہے، دنیا کو بھارت کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا، صدر آزاد کشمیر مسعود خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کشمیری تنہا نہیں، پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہے، حکومت کشمیریوں کی مؤثر ترجمانی کر رہی ہے۔ کمانڈر کلبھوشن جادو، نمبر 4155 زلو، انڈین نیوی۔ پاکستان کا بڑا اقدام، بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو قونصل رسائی دے دی، دہشت گرد کلبھوشن یادو کی بھارتی ڈپٹی ہائی کمشنر سے 2 گھنٹے طویل ملاقات، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے بے خوف ماحول میں قونصلر رسائی فراہم کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول رکھے، ISPR کے مطابق وزیر اعظم نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جنگ اور پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنے پر پاک فضائیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ یہ بھی ہے پاکستان، پشاور کا سعید خان، ہمت و حوصلے کی پہچان، باہمت شخص نے معذوری کو آڑے نہ آنے دیا، پڑھ لکھ کر گریجویٹ بنا، وطن کے دفاع میں مر مٹنے کا عزم۔ قومی کرکٹ ٹیم کے مینیجر کے عہدے کے لیے نوید اکرم چیمہ فیورٹ قرار، سابق ٹیسٹ کرکٹر محسن خان کا نام بھی زیر غور، قومی کرکٹ ٹیم کا پری سیزن کنڈیشننگ کیمپ، سرفراز 11 نے اظہر علی 11 کے خلاف 7 وکٹوں پر 355 رنز بنا لیے۔ اور میں ہوں علی عابد۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے، 8 نکاتی ایجنڈے میں مقبوضہ کشمیر اور ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی
मकबूजा कश्मीर के लिए किए गए इक़दामात पर काबीना को एतमाद मिलेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 8 नुकाती एजेंडे में मकबूजा कश्मीर और मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मकबूजा कश्मीर के लिए किए गए इक़दामात पर काबीना को एतमाद में भी लेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है और 8 नुकाती एजेंडे में मकबूजा कश्मीर और मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मकबूजा कश्मीर के लिए किए गए इक़दामात पर काबीना को आज एतमाद मिलेंगे और इसी इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गौर व फिक्र होगा। कराची में बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम है। कोरंगी सनती एरिया में माल बरदार ट्रक और बसें ट्रैफिक जाम में फंसी हुई हैं। लियाकताबाद, सखियसन, केडिया चौरंगी, सोल्जर बाजार और मरीर कारा बोर्ड पर भी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। इस हवाले से अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे वकास खान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा बारिश के बाद ट्रैफिक की कैसी सूरत हाल इस वक्त? जी बिल्कुल, कराची में होने वाली बारिश का सिलसिला अब थम चुका है। कराची में सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था। महकमा मौसमियात का यहाँ पे ये कहना है कि जो आइंदा आने वाले 24 घंटे के दौरान भी मज़ीद बारिश हो सकती है, लेकिन उसकी नौयत उतनी ज़्यादा नहीं होगी जैसे कि आज और कल में हुई थी। अलबत्ता जो सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो कराची में 13 मिलीमीटर तक हुई है। बारिश होने के बाद मुतअद्दिद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही थी। शाहर फैसल पर ट्रैफिक जैम था और दीगर इलाकों में ट्रैफिक जाम था, उसमें अब बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस एहलकार ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर बना रहे हैं। अलबत्ता कोरंगी कॉजवे को जो बंद कर दिया गया था वहाँ पर अब भी ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि सड़क के ऊपर पानी मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद ना होने की वजह से ट्रैफिक के फ्लो को अभी तक बेहतर नहीं बनाया जा सका। जी, जिक्र हो रहा है कराची में बरसे अब्र करम का, जिसे इंतजामिया की नाअहली ने जहमत बना दिया है। खुदा की रहमत इंतजामी नाअहली से जहमत बन गई। कराची का हाल बारिश से बेहाल। कल का पानी आज भी ना निकाला जा सका। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया, टूटी सड़कें, उस पर कहीं पानी तो कहीं कीचड़। आवाम सख्त परेशान। कई दफे तो मैं गिरा हूँ, कीचड़ ही कीचड़ है, चारों तरफ कीचड़ है। गंदगी इतनी हो रही है, आज जाने आने को रास्ता देखो मिलता नहीं, कीचड़ ही कीचड़ है। सुपर हाईवे के करीब तेज बारिश से थुड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया, करीबी इलाके डूब गए। कोरंगी कॉजवे की सड़क ज़ेरे आब आ गई, जिसके बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बलोच कॉलोनी से कोरंगी ब्रोक्स के लिए रास्ता भी बंद पड़ा है। थोड़ी सी बारिश में तो ये हाल है, आने वाले दिनों में क्या होगा? क्योंकि महकमा मौसमियात ने कल भी तेज बारिश की पेशगोई कर रखी है। कराची में जा बजा पड़ा कचरा और गंदगी, इस बार बारिश शहरी परेशान हो गए। गलाजत और बदबू मकीनों की जान जला रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लांडी, कायदाबाद, मलीर एयरपोर्ट पर अब्र रहमत खुलकर बरसा। गुरु मंदिर, आयशा मंजिल, नॉर्थ कराची और एम.ए. जिना रोड पर भी वक्फे से बारिश। मगर बारिश के बाद शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। कचरा, गंदगी, गलाजत, बदबू मकीनों की जान जला रहा है। पूरे इलाके में गंदगी और कचरा, मक्खी, बुरा हाल है। कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ आते हैं सारे वोट लेने के लिए, उसके बाद कोई नहीं आता। पीएमसी वाले कुछ भी नहीं करते इधर। ये सब लापरवाह लोग हैं। कराची का बहुत बुरा हाल है। सड़कों पर खड़ा उबलते गटरों का पानी। मुताल्लिका हुक्काम को सफाई के लिए दी गई मुतअद्दिद अर्जियां भी अफसर शाही का ईमान ना जगा सकी। हुक्काम की बेहिसी से शहर में वबाई अमराज फैल रहे हैं। ठट्टा सिविल अस्पताल में डॉक्टर ना होने के बाइस बुखार में मुब्तला 1.5 साल बच्ची इंतकाल कर गई है। गुरसा ने इमरजेंसी के सामने धरना दिया है। अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अमरलाल हमारे साथ मौजूद हैं। अमरलाल, बताइएगा बच्ची को क्या मर्ज लाहक था और डॉक्टर की गैर मौजूदगी की अभी क्या वजह बताई जा रही है? जी, सिविल अस्पताल मकवी में ठट्टा पे ताल्लुक रखने वाले 1.5 साल बच्ची आयत को इमरजेंसी हालत में अस्पताल लाया गया था।
जहाँ पर डॉक्टर की न मौजूदगी होने की वजह से वहाँ तड़प कर फौत हो गई थी। वर्षा ने डॉक्टर के खिलाफ धरना दिया हुआ है इमरजेंसी के सामने। वर्षा का यही कहना है कि हम यहाँ डॉक्टर की तलाश कर रहे थे, लेकिन 2 घंटे से डॉक्टर नहीं मिला, जिसके खिलाफ हमने एहतजाज किया हुआ है। डॉक्टरों की नाअहली की सबब जो बच्ची हमारी जो बुखार में मुब्तला थी, वहाँ जब पहुंचे तो डॉक्टर मोदी नहीं था। उन्होंने आज हड़ताल भी की हुई है, लेकिन अभी मालूम हुआ है कि डॉक्टर के खिलाफ मकली थाने पर केस भी दाखिल कर दिया गया है। तो अमरलाल बताइएगा, सिविल अस्पताल है, बड़ा अस्पताल होगा, यकीनन 1 से ज्यादा डॉक्टर होंगे, कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था? नहीं, रात 8 बजे डॉक्टर की ड्यूटी खत्म हो जाती है, तो दूसरे डॉक्टर जो 8 बजे वहाँ सिविल अस्पताल मकली में आते हैं, जो आज 8 के 2 घंटे तक वो अस्पताल में नहीं पहुंचे थे। यहाँ इस बच्ची के अलावा काफी वहाँ दूर दूर से भी मरीज आए हुए थे, लेकिन वो भी बाहर डॉक्टरों के इंतजार कर रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया अमरलाल आपका। हवाले से यूरोपीय पार्लियामेंट की खारिजा कमेटी को जम्मू कश्मीर पर भारतीय मजालिम से आगाह कर दिया गया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कमेटी को ब्रीफिंग दी, जिस पर अरकान ने भारत पर दबाव डालने की हामी भर ली। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस से। जी यूनुस, भारतीय मजालिम पर क्या ब्रीफिंग दी गई है? जी, जैसे कि आपको मालूम है कि आज यूरोपियन पार्लियामेंट में यूरोपियन की जो खारिजा कमेटी है और इंसानी हुकूक की कमेटी है, इस हवाले से आज उन्होंने जो साल का पहला दिन था, यूरोपियन पार्लियामेंट का आज का साल का पहला दिन शुरू है, उसमें उन्होंने कश्मीर को एजेंडे पे रखा था। और हमारे हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने यूरोपियन पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दी, उन्होंने उनको बताया कि वहाँ पे कश्मीरियों को क्या मुश्किलात का सामना है। 29 दिन हो गए हैं, वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पे मेडिसिन की शॉर्टेज है, वहाँ पे स्कूल बंद है। तो इस हवाले से यूरोपियन पार्लियामेंट के अरकान और इंसानी हुकूक की कमेटी के लोगों ने उनसे इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा कि वो इंडिया पे जोर डालेंगे कि वहाँ पे कर्फ्यू को ख़त्म किया जा सके और इंसानी हुकूक की जो सूरत हाल है उस पर यूरोपियन पार्लियामेंट ने और इंसानी हुकूक की कमेटियों ने तशवीश का इज़हार किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद यूनुस। दिफाई तज्जियाकार तलत मसूद ने यूरोपीय पार्लियामेंट में मसले कश्मीर पर बहस को बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया है। कहते हैं पाकिस्तान ने आलमी सतह पर बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की, लेकिन अभी हमें मजीद काविशें करना होंगी। ये मेरे ख्याल में काफ़ी मौसर साबित हुए हैं, इसलिए कि आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तकरीबन 50 बरस के बाद जो कश्मीर का मामला था वो उठाया गया। बैनुल अक़वामी सतह पर तो पाकिस्तान की बड़ी हद तक एक लिहाज से कामयाबी हुई है, लेकिन जाहिर है कि और भी इक़दामात की ज़रूरत है। इस तरीक़े से जुल्म और बर्बरियत वहाँ हो रही है और पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है कि जहाँ भी मुमकिन हो सके अब आवाज़ उसकी उठाई जाए। लाहौर में इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म बना, भारत को दोस्ती का पैगाम दिया, लेकिन भारत ने मस्बत जवाब ना दिया। आज जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, तनाव बढ़ा तो इससे दुनिया को खतरा है, मगर पाकिस्तान की तरफ से कभी पहल नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार किया कि जंग से एक मसला हल होता है तो 4 और मसले खड़े हो जाते हैं। हमारे गेस्ट्स जो भी जंग से मसले हल करने की कोशिश करता है उसमें अकल ही नहीं है, उससे तारीख ही नहीं पड़ी हुई दुनिया की। 80 लाख लोगों को बंद कर दें, ना कोई न्यूज आ रहे थे, ये तो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, मसला कश्मीर भी मुज़ाकरात से हल होगा। वजीर आजम का एक बार फिर मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम। कोई भी जंग से मसले हल होते हैं, जो भी जंग से मसले हल करने की कोशिश करता है उसमें अकल ही नहीं है, उससे तारीख ही नहीं पड़ी हुई दुनिया की। आप एक मसला हल करते हैं जंग से, 4 और मसले खड़े हो जाते हैं। सिख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जंग हुई तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। हम 2 न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, अगर ये आगे टेंशन बढ़ती है तो दुनिया को खतरा है इससे। वजीर आजम ने कहा, मोदी सरकार RSS के नजरिए पर चल पड़ी, इससे सिर्फ मुसलमान ही नहीं सिख भी खतरे में है। आज मुसलमानों से जो हो रहा है हिंदुस्तान में, यही RSS की आइडियोलॉजी, और ये रुकेगी ही नहीं। यहाँ ये दलित को भी तंग करेगी, ये सिख मजहब के ऊपर भी जाएगी, क्योंकि ये टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है। वजीर आजम का कहना था कि दोनों ममालिक का मसला गुर्बत और अफलास है,
सिखों के लिए मल्टीपल वीजा और ऑन अराइवल